Hello students, today we are going to start class 12th physics. In class 12 physics, the first unit is electrostatics. In this unit, we have to cover two chapters, electric field and charge. This is the first chapter, and the second chapter is electrostatic potential and capacitors. So these are the two chapters of the first unit, which covers nearly 8 marks of your board paper. So now we are going to start our first chapter, electric field and charge. So before starting the first chapter, we should know what is electrostatics. So you can note down the definition of electrostatics. Okay, write down: study of interactions and electrical effects due to charges at rest. Now if you look carefully at this definition, you will see that study of interaction. What does interaction mean? Interaction means the forces which are acting between the charges. There are two types of forces, the force of attraction and the force of repulsion. And one more thing is very much clear in the definition: electrostatics is due to charges at rest. So over here we will discuss about the charges which are at rest and its effects. So let us proceed further and see. If you will see that in the definition, one more thing is very much clear, कि charge is the root cause. Charge is the root cause of electrostatics. So we should know what is charge. So what is charge? Just note it down in your copy. Charge. Electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. So what is charge? If you look carefully, we are not defining charge. We are just talking about charge, which is based on its properties. So we'll have to understand what are the properties of charge. Now we are going to discuss about the properties of charge. If we talk about the properties of charge, the first property regarding charge is, one should be very much clear about that. That is, charge is a scalar quantity. Now, charge is a scalar quantity. What do you mean by this? इससे हमें क्या समझ में आता है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें सिर्फ सिंपल अलजेब्रिक रूल्स का इस्तेमाल करना है. यहां पे किसी वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यहां पे डायरेक्शन जो है कोई रोल प्ले नहीं करता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज चार्ज के बारे में जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है. सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. कूलम जब हम फुल फॉर्म में लिखते हैं तो स्मॉल सी से लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में जो है कैपिटल सी से मेंशन करेंगे. तो ये है हमारा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. अब एसआई यूनिट ऑफ चार्ज देखने के बाद जो हम तीसरी बात हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी आप सबको पता भी है, वो ये है कि चार्ज के टाइप्स कितने हैं. सो टाइप्स ऑफ चार्ज. So if you talk about types of charge, there are two types. First one is positive and the second one is negative. One more thing you should keep in your mind, that is, this is by convention. अब by convention का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में आप बहुत से जगहों पे आप देखेंगे by convention लिखा हुआ आपको मिलेगा.
बाय कन्वेंशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, बाकी सभी लोगों ने उसको मान लिया बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के। सो चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले या जब हम चार्ज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये 3 बेसिक बातें हमें पता होना चाहिए। अब जो चौथा और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट क्या कहता है? चार्ज इज द फंडामेंटल और यू कैन से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी कहने का मतलब क्या है, चार्ज जो है ट्रू प्रॉपर्टी है मैटर का, जस्ट लाइक मास। जैसे कि मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये जो पॉइंट है इसकी एक और इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो उस लिहाजे से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि दिस पॉइंट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन चार्ज एंड मास। तो ये पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में आप रखेंगे, चौथा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना। अब हम लोग जो है 5वें पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। 5वां पॉइंट क्या कहता है? 5वां पॉइंट कहता है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, whereas mass can exist without charge। क्या कहना चाह रहा है? जैसे कि समझ लीजिए ये जो मार्कर हमारे हाथ में, इट हैज मास, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं है ये टोटली डिपेंड करता है। तो जहां मास है वहां चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर चार्ज है तो जाहिर सी बात है चार्ज किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वहां पे मास भी है। तो सिंपल सी बात है कि मास जो है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, वेयर एज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो ये हमारा 5th पॉइंट था जो कि मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, लिख लीजिए। चार्ज is always associated with mass, whereas mass can exist without charge। तो ये हमारा 5th पॉइंट था। अब जो हमारा 6th पॉइंट है, 6th पॉइंट को हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये आप जानते हैं कि ये क्या होता है। आपने सुना होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, whereas unlike charges attract each other। ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, यही है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल each other, whereas unlike charges attract each other। समझते हैं इसको? मान लीजिए 2 चार्ज है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो कि एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है,
ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज दे आर लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर दो नेगेटिव चार्ज आमने सामने हैं तो वो भी आपस में जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। इन केसेस में दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और इस केस में व्हेन दे आर ऑफ ऑपोजिट नेचर दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। तो ये जो है हमारा छठा पॉइंट है चार्ज के बारे में, विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आगे हम बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लें और जो भी बोर्ड में है उसको नोट डाउन कर लें। सो अब हम लोग जो है 7th पॉइंट स्टार्ट करते हैं, और ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में अगर बात करें तो इस स्टेटमेंट को हम 2 तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, और दोनों ही स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला स्टेटमेंट जो इसमें आप कह सकते हैं इस तरीके से, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड in an isolated system। ध्यान दीजिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी यहां पे जो सिस्टम होगा, इंडिविजुअल की हम बात नहीं करते हैं, हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, और सिस्टम को भी हम आइसोलेट कर दे रहे हैं सराउंडिंग से। सराउंडिंग से हमें कोई लेना देना यहां पे नहीं है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। अभी हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट को भी देख लीजिए। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred from one object to another। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, जो काफी कॉमन सा स्टेटमेंट है, जो आप जो है छोटे क्लासेस से 7th 8th से इस तरह के स्टेटमेंट को देखते आए हैं। अब यहां पे हम लोग समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, एक है बिफोर चार्जिंग और एक है आफ्टर चार्जिंग। हम क्या करते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, ए और बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। बिफोर चार्जिंग दोनों ही पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। यहां पे जो है प्रोटॉन्स की संख्या जो है 11 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, से फॉर एग्जांपल, ओके। और यहां पे प्रोटॉन्स फॉर एग्जांपल 15 है और इलेक्ट्रॉन्स जो है फॉर एग्जांपल 15 है। दोनों इंडिविजुअली न्यूट्रल है। और अगर आप एज अ होल सिस्टम को देखेंगे, इस केस में सिस्टम में हम दोनों को कंसीडर करते हैं, तो सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 26 है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, वो भी 26 है। तो सिस्टम एज अ होल क्या हो गया, न्यूट्रल है। अब चार्जिंग होता है, सपोज मान लो कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो बी को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देता है
A loses one electron and becomes positively charged, और B gains one electron and becomes negatively charged. अब इस सिचुएशन में देखिए क्या हुआ, प्रोटॉन्स A के पास 11, इलेक्ट्रॉन जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई, 10। B के पास प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं आया, प्रोटॉन 15 है, इलेक्ट्रॉन जो है इट हैज गेन्ड वन इलेक्ट्रॉन और अब हो गया 16। अब आफ्टर चार्जिंग अगर सिस्टम को देखें, आफ्टर चार्जिंग अगर सिस्टम को देखें तो सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 26, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 26। तो आफ्टर चार्जिंग ऑल्सो सिस्टम में आप देखिए सिस्टम अभी भी न्यूट्रल है, यानी कोई बदलाव नहीं आया। तो क्या लिखा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम यानी किसी सराउंडिंग से कट ऑफ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स अगर एक लूज करेगा तो दूसरा ही गेन करेगा। उस केस में बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है कंजर्व्ड है। इंडिविजुअली ए चार्ज हो गया, इंडिविजुअली बी चार्ज हो गया, लेकिन एज अ सिस्टम कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो बोर्ड पे जो भी है आप एक नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कह सकते हो इट कैन बी कंसिडर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। क्या अंतर है? क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि मास जो है वो वैरी करता है विथ स्पीड। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे मास चेंज होता है। ये फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था। तो यहां पे सिंपल सी बात हम लोगों को क्या पता थी मास के बारे में, कि मास वेरीज विथ स्पीड, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। क्यों ये बात हम लोगों को डिस्कस करना पड़ रहा है? इसलिए डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं मैटर के, लेकिन उसके बावजूद ये डिफरेंस है। तो दिस पॉइंट यू कैन कंसिडर एज वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट with respect to speed, whereas mass varies with speed. So ये हमारा जो है 8th पॉइंट था। अब जो 9th पॉइंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली जो है दैट इज Q इज इक्वल्स टू NE, जहां पे E क्या है, E इज द बेसिक चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। और इसकी वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एंड व्हाट इज N ओवर हियर? N जो है वो है इंटीजर्स। ये तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, अभी बेसिक चार्ज क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जो है लिख लीजिए और फिर मैं उसको समझा देता हूं। सो नोट इट डाउन। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिसिटी।
It is also known as the principle of atomicity. Full stop. आगे लिखो. Just as a substance is formed of atoms, a charge is formed of small units of charge. Full stop. Each unit is known as the elementary charge. Full stop. It states that any physically existing charge is integral multiple of the basic charge. तो जो आपने लिखा उससे बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जा रहा है कि जैसे कि कोई सब्सटेंस एटम से बना हुआ होता है, उसी तरीके से चार्ज जो है, कोई भी चार्ज इस यूनिवर्स में कोई भी चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, इट इज मेड अप ऑफ द बेसिक चार्ज और द एलिमेंट्री चार्ज, जिसका वैल्यू है ये. एंड मैथमेटिकली हम इसको कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू NE. तो ये हमारा जो था वो था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब इसके बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें पता जानना है. सबसे पहले तो ये बेसिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है. तो ये जो है इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज existing in free state. इस बात को अगर ध्यान से देखो तो यहां पे लिखा है ये सबसे छोटा चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन फ्री स्टेट. फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला ये सबसे छोटा चार्ज है. इसका मतलब क्या है कि इससे भी छोटा चार्ज है, लेकिन वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है. और वो क्या है? वो है क्वार्क्स, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये तो हो गया हमारा बेसिक चार्ज के बारे में जानकारी. अब इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से. और वो 3 पॉइंट में सबसे पहला, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट टेल्स अस अबाउट द डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज. ये जो है चार्ज के डिस्क्रीट नेचर के बारे में बात करता है. यानी कहने का मतलब क्या है कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये डिस्क्रीट इन नेचर है. ये हमारा पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में वो ये है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक चार्जेस. ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक चार्जेस के लिए वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है. क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो फॉर्मूला है आपके सामने Q इज इक्वल्स टू NE, इसके बारे में अगर हम सोचें तो अगर ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है तो हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक N की वैल्यू और दूसरा E की वैल्यू. अब E की वैल्यू तो हमें हमेशा पता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. बस N की वैल्यू अगर पता चल जाए तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो इसीलिए कहा गया कि जब माइक्रोस्कोपिक चार्जेस होता है तो वहां पे N जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन जब चार्ज बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर वहां पे चार्ज में N की वैल्यू पता करना मुश्किल हो जाता है. तो जब केसेस ये अराइज हो जाते हैं तो वहां पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते. इसीलिए कहा गया है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक चार्जेस, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक चार्जेस. तीसरा चीज, ये जो फॉर्मूला है इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था फैराडे ने. और इसको एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई इसकी?
मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इस फॉर्मूले का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो ये जो लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेसिकली नीट के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वहां ये आपको काम कर सकता है, अगर पूछ दिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है। तो इन बातों के साथ हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये जो टॉपिक है यहां पे समाप्त करते हैं। एक छोटा सा सवाल Q इज इक्वल्स टू एनी पे बेस्ड। सवाल क्या है? कैन अ बॉडी हैव 4 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज? क्या कोई बॉडी ये चार्ज पोजेस कर सकता है कि नहीं? इस सवाल को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई भी चार्ज आपको दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि क्या कोई बॉडी वो चार्ज पोजेस कर सकता है कि नहीं, तो कैसे आप चेक करेंगे कि वो चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? तो उसके लिए जो है हम Q इज इक्वल्स टू एनी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहां पे Q के जगह हम लोग जो है ये पुट करेंगे, n हमें पता नहीं और E की वैल्यू नोन है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो अब हम यहाँ पे n कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 4.0 into 10 to the power minus 19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सॉल्व करने पे क्या आया? 40/16। सो 5/2, n की वैल्यू आई 5/2। इससे क्या पता चल रहा है? n फ्रैक्शन में आ रहा है, ये इंटीजर नहीं है, जबकि Q इज इक्वल्स टू एनी में साफ साफ कहा गया था कि n शुड बी इंटीजर। तो अगर n इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर n की वैल्यू इंटीजर आई होती तो फिर ये चार्ज एग्जिस्ट करता। तो इस तरीके से अगर कोई भी चार्ज आपको दे दिया जाए तो बहुत आसानी से Q इज इक्वल्स टू एनी को अप्लाई करके आप पता कर सकते हैं कि वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। नाउ वी विल स्टार्ट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने के 3 मेथड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन मेथड को डिस्कस करते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सबसे पहले तो इसके बारे में दिमाग में बैठा लीजिए। बाय दिस मेथड we can charge insulators। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि वेरी इजीली। ऐसा मैंने क्यों लिखा? इस मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ जो है इंसुलेटर्स को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। क्या हम कंडक्टर्स को नहीं चार्ज कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। खैर वो बात हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले फ्रिक्शन के मेथड से चार्जिंग को समझते हैं। फ्रिक्शन के मेथड से चार्जिंग को समझने के लिए सबसे पहले तो एटम के स्ट्रक्चर को जानिए। हम सब जानते हैं एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। उसके चारों तरफ जो है ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, लेकिन वो एटम से बिछड़ नहीं सकता है, एटम को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता है। ये हम इंडिविजुअल एटम की बात कर रहे हैं, जब सिर्फ और सिर्फ एक एटम है। लेकिन
जैसे ही सब्सटेंस बनता है, सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स पैक्ड। तो वहां पे फिर क्या होता है कि ये जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक एटम के साथ अटैच होके नहीं रह जाते, दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली इन द सब्सटेंस। सब्सटेंस में फ्रीली वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब्सटेंस से बाहर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो न्यूक्लियस के पुल को ब्रेक करके बाहर आ जाए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एनर्जी को ब्रेक करके, पुल को ब्रेक करके मटेरियल से बाहर निकले, तो फिर उसको हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ये टोटली डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ता है, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो मैंने अभी जो आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर एमिट करवाना है तो वी विल हैव टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इट। ये जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको वर्क फंक्शन पता होना चाहिए। तो वर्क फंक्शन का डेफिनेशन क्या है आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं। एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the surface of a given material is called its work function. Full stop. It is different for different materials. मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, it is different for different materials. खैर, अब वर्क फंक्शन हम लोगों को पता हो गया। अब जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एनर्जी हम कई तरीके से दे सकते हैं। लाइट के थ्रू दिया जा सकता है, हीट एनर्जी के थ्रू दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू दिया जा सकता है, तमाम ऐसे मेथड्स हैं, बट यहां पे हम लोग जो है थर्मल एनर्जी की बात करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जाहिर सी बात है किसी न किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही अचीव होगा। तो डिफरेंट मटेरियल्स अपने अपने वर्क फंक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे अचीव करते हैं। तो किसी का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस पे, सपोज फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है, सपोज फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेल्सियस पे कोई अपने वर्क फंक्शन को अचीव कर ले रहा है, कोई 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अचीव कर ले रहा है, ये होता है। अब इस चीज को हमें समझना है। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये हमारे हाथ में, ये एक पेपर का है और ये हमारा मार्कर है। हम इसको रब करते हैं। जब हम रब करते हैं थोड़ी देर बाद पाते हैं कि ये चार्ज हो जाता है। जाहिर सी बात है ये दोनों चार्ज हुआ, यानी किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे। मान लीजिए कि ये जो मार्कर है इसका वर्क फंक्शन 10 डिग्री सेल्सियस पे अचीव होता है, और ये जो पेपर का ये है, ये अपना वर्क फंक्शन जो है 15 डिग्री सेल्सियस पे अचीव करता है। अब जब हम इसको यूं रब करना शुरू करते हैं, यानी देयर इज फ्रिक्शन, और हम सब जानते हैं जब फ्रिक्शन होगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। आप सबने नोटिस किया होगा जब आप अपने पाम को यूं रब करते हैं तो गर्म होने लगता है।
तो टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है, दोनों का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, पेन का भी इस पेपर का भी। टेम्परेचर राइज शुरू होता है, जाहिर सी बात है पहले कौन सा टेम्परेचर अचीव होगा, 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसका तो 15 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा, ये मार्कर जो है इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा ये पेपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग पूछे सर क्यों यही गेन करेगा, कोई और भी? तो यहां पे हम सिस्टम को आइसोलेट किए हुए हैं, दोनों एकदम यूं टच कर रहे हैं। तो मार्कर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो बन गया पॉजिटिवली चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन गया नेगेटिवली चार्ज। अब जरा ध्यान से जो भी हमने आपको बताया उसको जरा ध्यान से सुनिए और सोचिए। इसका वर्क फंक्शन कम था, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा था। किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया? इसने। यानी जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमेशा जिस ऑब्जेक्ट का या जिस मटेरियल का, जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसका वर्क फंक्शन हाई होगा कंपैरेटिवली वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल फ्रिक्शन का, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर एग्जांपल कोई बताइए कॉमन डे टू डे लाइफ में। तो बहुत बचपन में हम सब लोगों ने खेला है, स्केल को अपने बालों पे यूं रब करते हैं और पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करते हैं, आप सबने देखा होगा। वहां पे क्या हुआ, स्केल जो है फ्रिक्शन से चार्ज हो गया और फिर वो न्यूट्रल जो पेपर बिट्स हैं उनको वो अट्रैक्ट कर लेता है। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कुछ और बातों को हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, इस मेथड से हम इंसुलेटर्स को तो बहुत आसानी से चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर्स का वर्क फंक्शन कम होता है, लेकिन कंडक्टर्स, मेटल्स जो होते हैं उनको हम इस मेथड से आसानी से चार्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या कारण है? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनका वर्क फंक्शन बहुत हाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये लोग, इनका जो वर्क फंक्शन है ये 2000, 2500, 3000 डिग्री सेल्सियस पे अचीव होता है। अब मान लो हमने एक कॉपर रॉड ले लिया, हमने एक एल्यूमिनियम रॉड ले लिया, दोनों को यूं रगड़ते रहे, ना ही 2000 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ना ही 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच, जिंदगी भर यूं रब करते रह जाएंगे लेकिन चार्ज नहीं होगा। तो सवाल उठता, तो क्या सर हम मेटल्स को चार्ज कर ही नहीं सकते फ्रिक्शन से? कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रिकॉशंस लेना है। करना क्या है, आप एक मेटल रॉड ले लीजिए और एक इंसुलेटर ले लीजिए। इंसुलेटर का वर्क फंक्शन लो है, तो आसानी से जब आप रब करेंगे तो इंसुलेटर अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव कर लेगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? मेटल रॉड। तो चार्जिंग बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, इस मेथड से जब भी आप मेटल्स को चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो मेटल्स जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की स्थिति में रहेंगे, एंड दे विल ऑलवेज बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। पर एक चीज और आपको ध्यान देना है, मेटल्स को हमेशा आप बेयर हैंड से नहीं होल्ड करेंगे, यू विल वेयर अ रबर ग्लव्स, और तब आप मेटल को, फिर आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल्स जो है ये कंडक्टर है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा इलेक्ट्रॉन इसमें चलने लगेगा और चलते हुए आपके हाथ के रास्ते अर्थ में चला जाएगा, बिकॉज आवर बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर। तो इस कनेक्शन को ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करने के लिए ही हम रबर ग्लव्स पहनेंगे, क्योंकि रबर क्या है? इट इज एन इंसुलेटर। तो ये जो था हमारा
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने एनालिसिस किया। चार्जिंग बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, ये हमारा दूसरा मेथड। इसको हम कांटेक्ट मेथड भी कहते हैं। क्यों इसलिए कहा जाता है कांटेक्ट मेथड? क्योंकि इसमें चार्ज रॉड और अनचार्ज रॉड का आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी है। अब जरा ध्यान दें, कांटेक्ट में आना जरूरी है और इसमें लिखा गया है चार्जिंग बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन कहां होगा? इंसुलेटर में तो होगा नहीं, कंडक्टर्स में होगा। तो इसी वजह से ध्यान रखिए कि ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे 3 फिगर है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 1 में एक अनचार्ज्ड रॉड है विच इज माउंटेड ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड। अब हम क्या करते हैं, फिगर नंबर 2 में देखिए कि हम लोगों ने एक चार्ज रॉड, जिसको हम रॉड ए कह सकते हैं, और अनचार्ज रॉड के कांटेक्ट में उसको लाते हैं। ध्यान से देखिए यहां पे चार्ज रॉड जो ए है, इसके पास 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 4 पॉजिटिव चार्जेस, और यहां पे कुछ भी नहीं है। अब होता कैसे है? इट इज बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। तो मेथड ऑफ कंडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसमें से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, जैसे ही यहां पे आएगा इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां पे अब रह जाएगा 3+, लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो 1+ डेवलप हो गया। फिर एक और इलेक्ट्रॉन चलेगा और यहां पे आएगा, फिर इसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अब यहां रह जाएगा 2+ और यहां पे फिर 1+। तो ये जो प्रोसेस है चार्जिंग का, ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश ना हो जाए। जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो जाएगा, चार्जिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? रॉड ए जो कि चार्ज था, अब उसके पास सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज रह गए, और रॉड बी जो कि अनचार्ज था, उसके पास भी 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इन जनरल कहने का मतलब क्या है? जब अनचार्ज रॉड पे कोई चार्ज नहीं था, अगर सिचुएशन ऐसा है तो उस केस में अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि सेम टाइप ऑफ चार्ज हैज बीन प्रोड्यूस्ड और डेवलप्ड ऑन द अनचार्ज रॉड। और दूसरा पॉइंट जो यहां ध्यान देने की बात यह है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, इनिशियली सिस्टम का क्या स्थिति था? यहां पे 4+ था और यहां पे कुछ नहीं था। तो सिस्टम में टोटल चार्ज कितना था? 4 पॉजिटिव। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा चार्जिंग बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन के बारे में था। अब इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, लिख लो। सबसे पहला तो ये है, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड बाय दिस मेथड। सेकेंड पॉइंट नोट कर लो, कांटेक्ट शुड बी देयर बिटवीन द चार्ज्ड एंड द अनचार्ज्ड रॉड। चार्ज रॉड और अनचार्ज रॉड के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, तभी चार्जिंग होगी इस मेथड से, क्योंकि इट इज मेथड ऑफ कंडक्शन, और कंडक्शन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चाहिए, यानी देयर शुड बी अ कंप्लीट पाथ, ब्रेक नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट,
total charge of the system is equally distributed among the charged and the uncharged rod. And fourth point, in general, ध्यान दीजिएगा, in general मैं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि अनचार्ज रॉड पे कोई चार्ज नहीं था, ध्यान रखना ये बात. In general, charge of same sign, or you can say charge of same nature, is produced on the uncharged rod. अब इस मेथड को और अच्छे से समझने के लिए कुछ जो है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देखते हैं. जैसे मान लो कि यहां पे एक रॉड है और ये हमारा अनचार्ज रॉड है. यहां पे 4+ है, ये पे हम यहां लिख देते हैं कि बिफोर कंडक्शन. और यहां पे लिख देते हैं आफ्टर कंडक्शन. अब इनको हम कांटेक्ट में लाएंगे. कांटेक्ट में लाने के बाद हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? According to the point which you have written, उस पॉइंट के हिसाब से the total charge of the system is equally distributed. यानी total charge of the system जो था वो 4+ था, बराबर भागों में बट गया. केस नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा. रॉड ए एंड रॉड बी. रॉड ए के ऊपर 4 पॉजिटिव है और यहां पे 6 नेगेटिव है. यानी बिफोर कंडक्शन व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम? द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 2 - 4+ और 6 नेगेटिव है, तो नेट क्या हो जाएगा? 2-. सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? एक -a पे और एक -b पे. अब आपको बात क्लियर हो रही होगी कैसे कंडक्शन होता है. तो ये जो 2 एग्जांपल्स हैं, इसकी मदद से कंडक्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो हम सीखते हैं. और यही इंपॉर्टेंट है. चार्ज ऑफ सेम नेचर वो तो एक जनरल आइडियल केस है जब यहां पे कोई चार्ज नहीं होता है. तो with this we come to the end of the charging by the method of conduction. अब जो है हम लोग थर्ड पार्ट इस्तेमाल करेंगे, चार्जिंग बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन. इसको जो है नॉन कॉन्टैक्ट मेथड भी कहा जाता है. अब इसमें होता क्या है, इस चीज को हमें समझना है. इसके मदद से जो है बेसिकली इसमें हम लोग जो है कंडक्टर्स को इस मेथड से चार्ज करते हैं, लेकिन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हम इंसुलेटर्स को भी इस मेथड से चार्ज कर सकते हैं. होता क्या है कि यहां पे एक इंसुलेटेड स्टैंड पे अनचार्ज कंडक्टर को रखा जाता है. ध्यान दीजिएगा, अनचार्ज कंडक्टर हम कह रहे हैं. और एक चार्ज कंडक्टर को उसके पास लाया जाता है, वेरी क्लोज टू इट. दिस इज ए, दिस इज बी. अब होता क्या है कि जैसे ही हम इसको पास लाते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करता है
और यहां पे जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। और जब इस तरफ नेगेटिव चार्जेस पुल होंगे तो फार एंड पे जो है उतने ही पॉजिटिव चार्जेस। तो नियर एंड पे एकदम ऑपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है और फार एंड पे जो है सेम नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि रॉड बी जो है वो चार्ज हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इस पे चार्ज बना रहे, अगर आप रॉड ए को हटा देंगे तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वापस खत्म हो जाएगा और वापस ये न्यूट्रल हो जाएगा। यहां पे एक और व्यवस्था की जाती है कि जो फार एंड है उसको जो है अर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है। अब जब आप इसको यहां लाते हैं, इसको यहां पे रखे हुए, हटाएंगे नहीं, इसको यहां पे रखे हुए ही इस स्विच को क्लोज कर देंगे। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे अर्थ कनेक्शन हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सारा जो है वो अर्थ में चला जाएगा और यहां से ये चार्जेस खत्म हो जाएंगे। अभी भी आपको ध्यान देना है। अब जैसे ये फ्लो कर जाएगा, अब इन दोनों को एक साथ हम हटाएंगे, यानी अर्थिंग भी ब्रेक करेंगे और इस रॉड ए को भी हम हटाएंगे। और जैसे ही हम इसको हटाएंगे हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आएगा, रॉड बी पे। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पूरे रॉड में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस इज मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। इस पूरे प्रक्रिया को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला चीज तो ये देखने को मिलता है कि यहां पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जबकि वहां पे चार्जिंग बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन में हमें कांटेक्ट में लाना जरूरी था। वहां पे यहां पे जो है हम जो है इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स दोनों को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए फिर यहां पे जो रॉड ए है उस पे काफी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए। खैर, जो महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेके आते हो तो इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, अगर आप नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यानी चार्ज ऑफ ऑपोजिट नेचर इज इंड्यूस्ड। दूसरा चीज, कंडक्शन में आपने देखा होगा कि सिस्टम का जो चार्ज था, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द टू रॉड्स, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे 4+ अगर ए पे था तो सेम मैग्नीट्यूड, यानी यहां पे भी 4- हो रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है 4, सिर्फ नेचर जो है चार्ज का बदल रहा है। एक और तरीका होता है चार्जिंग करने का, उसको भी आप देखें, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे दो स्फीयर हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं, दे आर माउंटेड ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड, दोनों आपस में कांटेक्ट में है। फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों स्फीयर है, इस दोनों स्फीयर ए, स्फीयर बी, ए बी, इसके नजदीक जो है हम एक चार्ज रॉड ले आते हैं। इस चार्ज रॉड सपोज जो है पॉजिटिव चार्ज, होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये भले दो स्फीयर्स हैं, लेकिन ये कांटेक्ट में होने के वजह से दे आर एक्टिंग लाइक अ सिंगल मटेरियल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस नियर एंड के तरफ पुल हो जाएंगे और फार एंड पे
पॉजिटिव चार्जेस। अभी थर्ड फिगर में देखिए क्या करना है। थर्ड फिगर में इस चार्ज रॉड को यहीं पे रहने देना है और हम करेंगे क्या कि ये जो स्फीयर्स थे जो कि आपस में कांटेक्ट में थे, ए और बी, इनको हम जो है हल्का सा सेपरेट करेंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं सेपरेट करना है, हल्का सा सेपरेट करेंगे। बहुत हल्का सा सेपरेशन देंगे। और उसके बाद स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि इस रॉड को हटा देंगे। और जैसे ही आप इस रॉड को हटाएंगे आप देखेंगे अभी सेपरेशन हल्का सा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है हमने। ये जो चार्जेस थे जो फार एंड्स पे थे वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। और अब फाइनली फिफ्थ फिगर में हम दोनों स्फीयर को अच्छी तरीके से सेपरेट करेंगे। और जब सेपरेट करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्जेस था इस पूरे स्फीयर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो ये एक है सिंगल रॉड को चार्ज करने का। यहां पे हमने दो स्फीयर को एक साथ चार्ज किया। इस पे बेस्ड आपको एनसीईआरटीज में क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अब इंसुलेटर्स चार्जिंग बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, चार्जिंग बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन की जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो लिखिए, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड बाय दिस मेथड। ध्यान दीजिएगा, लिखने के लिए आप लिख रहे हो ओनली कंडक्टर्स कैन, बट ध्यान रखिएगा कि इंसुलेटर्स को भी चार्ज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये जो रॉड है इस पे बहुत हैवी चार्ज होना चाहिए, तब आप इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर पाएंगे। तो दैट इज अ स्पेशल कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज नॉन कॉन्टैक्ट मेथड। तीसरा पॉइंट लिखिए, the charge produced will be either of same magnitude or having lesser magnitude. It depends whether it is conductor or insulator. कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कंडक्टर को इस मेथड से चार्ज करेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस डेवलप होंगे। अगर यहां 4 प्लस है तो यहां पे 4 माइनस, मैग्नीट्यूड दोनों ही केस में 4 है। यहां पे भी देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, बिकॉज ये सब क्या है, कंडक्टर्स है। लेकिन अगर आप इंसुलेटर को चार्ज करेंगे तो इंसुलेटर के केस में हमेशा जो इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। कितना कम होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पे वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आगे बहुत सारी जगहों पे जो है इसकी जरूरत पड़ती है चीजों को समझने के लिए। वो क्या है, Q डैश, Q डैश मतलब इंड्यूस्ड चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू Q। Q क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज। ये Q डैश है इंड्यूस्ड चार्ज, ये Q क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज, इनटू 1 - 1 बाई
K। यहां पे ये K क्या है? K एक्चुअली कप्पा है, ग्रीक लेटर कप्पा, एंड इट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस फॉर्मूले से आप इंड्यूस चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। अभी अभी हमने आपको कहा कि कंडक्टर्स के केस में इंड्यूस चार्ज सेम होता है, यानी Q डैश इज इक्वल टू Q आएगा इस फॉर्मूले से। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स कह लो, जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब जरा यहां पे इनफाइनाइट बैठाइए तो क्या होगा? 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। 1 माइनस 0 1 हो गया, यानी Q डैश इज इक्वल टू Q। तो फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स Q डैश इज इक्वल टू Q। वहीं पे इंसुलेटर्स के लिए K विल हैव सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और अगर K की कुछ ना कुछ वैल्यू आप बैठाइएगा तो ये जो ब्रैकेट में है इट विल बिकम लेस देन 1, और अगर ये लेस देन 1 हो जाएगा तो Q डैश विल बिकम लेस देन Q। So this is all about charging by the method of induction. Now our next topic will be Coulomb's law, which will be in the next lecture. Thank you.